सबसे पहले आप सब लोगों का नहायत मशकूर हूँ कि आपने आज यहाँ तशरीफ लाए। आई एम थैंकफुल टू द मीडिया दैट दे हैव मेड एन एफर्ट टू कम ओवर हियर। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है अगर मैं इस सिर्फ डायबिटीज कैंपेन के बारे में बात करूँ। मुख्तसरन मैं टीडीसी टीम को खराजे तहसीन पेश करता हूँ एंड अ बिग मैचलेस अपलॉज फॉर ऑल ऑफ यू। आज हम जिस इवेंट के लिए इकट्ठे हुए हैं ये पिछले 2-2.5 महीनों से शुरू हमने 20 मीटिंग्स की। गुस्सा हुआ मैं, बट मेरे गुस्से में भी प्यार था जिन लोगों को मैंने गुस्सा किया है। माई सोल पर्पज वॉज टू बिल्ड यू, टू ब्रिंग यू टू अ लेवल दैट यू हैव अ कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इन यू। और ये फर्स्ट टाइम आप अगले जो लोग पुराने हैं वो पुराने इवेंट्स को देखें तो वर्ल्ड डायबिटीज डे को हमने एक सीरियस कैंपेन लेके चले एंड वी स्टार्टेड अवर जर्नी। मैंने जैसे कहा 2 महीने पहले हमने कॉन्सेप्ट को कंसीव किया, हमने इवेंट्स को सिस्टमैटिकली लाइन अप किया। वी मेड नंबर ऑफ कमेटीज and their members to involve them in every step that we take. From toddlers, you became the marathon. From the day one, we went out for a national press club for a huge mega press conference. That had an impact. And thank you again, the press club, for supporting us. Thank you very much to him for such a big comment. And that comment is not for me only, it is you that from a very senior level that you were appreciated. Board of directors हमारे जो है ना, again I would like all of you for a big clap for the board of directors. Dr. Asjad जो हमारे चेयरमैन भी हैं बोर्ड की, again a great respect, a great tribute to him, and along with this the board of directors. हाँ, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमसे बहुत सी तकवात थी और चिट्ठियाँ भी आती थी वहाँ से हर किस्म की। हमारा ख्याल ये था कि हमें एक ब्रीदिंग स्पेस दें। वंस आई हैव अ ब्रीदिंग स्पेस तो वी विल गिव यू द रिजल्ट्स। इस पिछले 3-4 फंक्शन पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पे चीज़ें ऑब्जर्व की, देखी, and probably they were so happy and rather they were flabbergasted. It's amazing that they have seen it. And in response, I received an email from not less than the most active board member, Mohammad Musa Sahab. And I would like to read it out to everybody because that letter, that appreciation letter is for you. Are you here to listen to this? On behalf of the board of directors and myself, I am writing to express our sincere gratitude for the outstanding efforts and success in organizing the World Diabetes Day celebration at the Diabetes Center. The commitment and dedication demonstrated by you and your team have truly made a lasting impact on the community and have exceeded our expectations. The event was not only well organized, but also effectively conveyed the importance of raising awareness about diabetes and promoting a healthier lifestyle. Your leadership played a pivotal role in orchestrating a comprehensive program that included free screening, educational sessions, and engaging activities. The positive feedback from participants and the community at large is a testament to the meticulous planning and execution by the Diabetes Center team. We understand the challenges involved in organizing such events, and your team's ability to navigate them with professionalism and enthusiasm is commendable.
The success of the World Diabetes Day celebration reflects the commitment of the Diabetes Center to its mission of combating diabetes and improving the well-being of individuals in our community. Once again, thank you for your leadership, vision, and exceptional teamwork that made the event a resounding success. We look forward to continued collaboration and future initiatives that contribute to the betterment of our community. Please extend our appreciation to the entire TPC team at the Diabetes Center for their hard work and dedication. We are proud to be part of an organization that consistently strives for excellence in promoting health and well-being. Wishing you continued success in all your endeavors. Best regards, Babar. उन्होंने कहा कि मैं इधर पिछले 12-13 साल से गुजर रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। ये पता था कि एक हॉस्पिटल है, शुगर का है। कभी इन्होंने बुलाया तो ना मैं आया। आज जब मैं बार बोर्ड देखे, आज जब मैं इधर आया, मैंने चीज़ें देखी और आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। तो फाइनली मैंने सीओ से पूछा कि सीओ साहब आपने कब हर लेडी ऑफिसर, पैरामेडिक्स, स्पोर्ट्स स्टाफ, हाउस कीपिंग, गेट कीपर, सिक्योरिटी, माली, everybody is part of it. So my best wishes and congratulations to all of you. Thank you very much. Because every third, fourth patient is coming in the diabetes center will have some food problems. So it's a big, 25% is a big percentage of developing the food problems. Previously, why the food ulcers are developing? This is a question. Why? This is actually attributing to our several social and cultural practices, such as barefoot. We have a lot of patients coming here. If you see their foot, it's a thick one, very dirty, fungus in the nails and fungus between the toes. So they are walking without shoes. So poverty there, and the people, especially from the rural areas, they are coming to us with this barefoot problem. There is inadequate facilities for the diabetic care, and there is a poor education. Insoles or devices that are made to rehabilitate the patient with deformity, this foot deformity or any other deformity. तो डायबिटीज़ में हम जितने भी पेशेंट्स जो हमारे पास जाते हैं, उन एम्पुटेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम एक स्पेशली फुट या हम एक आर्टिफिशियल लिम्ब डिज़ाइन करते हैं या ऑफलोडिंग शूज़ डिज़ाइन करते हैं ताकि वो एम्पुटेशन की तरफ ना जाए, उनको प्रिवेंट करें एम्पुटेशन से। उसमें मेनली जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें फुट सर्जरी डिपार्टमेंट है जो कि बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। वो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनको पहले हम उनका स्कैन करते हैं। स्कैन से हमें फुट प्रेशर्स के बारे में पता चल जाता है कि कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। तो उस इंसोल के थ्रू हम ऑफलोड करते हैं या प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि फ्यूचर में वो कॉम्प्लिकेशन लॉस की तरफ ना जाए और फुट जो है वो हम लॉस ना करें या टो हम लॉस ना करें या हैंड हम लॉस ना करें। तो उस लॉस को बचाने के लिए हम स्पेशली इंसोल्स, फुट ऑर्थोटिक्स या फुट लिम्स जो है हम यहाँ पे फैब्रिकेट करते हैं। यहाँ हमारे पास वर्कशॉप है, वर्कशॉप में ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स हैं जिसको यूज़ करके हम फैब्रिकेट करते हैं थ्रू डिफरेंट रॉ मटेरियल्स। तो वो यहाँ टीटीसी में फ़र्स्ट टाइम आपको ये स्कैन की फैसिलिटी मौजूद होगी, पर इससे पहले पाकिस्तान में किसी भी इंस्टीट्यूट में ये पीडो स्कैन मौजूद नहीं है। सिर्फ वाहिद टीटीसी है जो कि ये स्कैन करती है और इससे हमें मोस्टली बहुत से पेशेंट्स को बचा रहे हैं कि एम्पुटेशन की तरफ ना जाए। बेहतर कर रहे हैं उनसे, और जो हमें यूनिक बनाती है उसमें से एक, अगर हम अपने शॉर्टेस्ट टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो वो है जैसे 1 घंटे में हम तमाम रिपोर्ट करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। तो हमारे क्लिनिकल बॉडी सेटअप में हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हम जिसमें क्लिनिकल केमिस्ट्री है, स्पेशल केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, सीरोलॉजी एंड हेमेटोलॉजी, ये सब हम यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
बिकॉज फुट जब ड्राई होते हैं उसमें स्किन क्रैक्स बनते हैं एंड दे सर्व एज अ सोर्स कि वो फिर बैक्टीरिया अंदर जो है वो उनमें इनोकुलेट हो सकता है एंड कैन कॉज इन्फेक्शन। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि ऑब्वियसली जो न्यूरोपैथिक फुट वाले पेशेंट्स हैं दे आर नॉट अवेयर कि उनका फुट के ऊपर प्रेशर किस तरह से अप्लाई हो रहा है। तो उनको कोई इनिशियली ऑन द स्टेज इनिशियली उनको किसी किस्म के कोई मेडिकेटेड शूज़ ऐसे कि जिसके ऊपर उनको प्रेशर ना आए वो एडवाइस नीड हो सकती है। जो चौथी चीज़ है जो मैं अपने हर पेशेंट्स को बताता हूँ और वो हमें इनफैक्ट खुद भी अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनको भी बताना चाहिए कि फुट को जितना वो वेट नहीं रखना चाहिए। जो मेजरली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो एक्चुअली आते हैं कि वो जैसे वज़ू कर लिया, पैर धो लिया और उसके बाद फिर उसी के अंदर वो सॉक्स अप्लाई कर लेते हैं या कोई शूज़ पहन लेते हैं या जो जो उनके फुटवेयर है वो पहन लेते हैं ना। जो मॉइस्चर होता है वो भी एक्चुअली कॉज कर सकता है इन्फेक्शन। और तो हमें उनको एडवाइस करना चाहिए कि फुट को हमेशा वॉश करने के बाद उसको प्रॉपर ड्राई करें। इंटरक्लेफ्ट जो स्पेसेस हैं उनको टिश्यू पेपर से उनको प्रॉपर जो है वो ड्राई करने की ज़रूरत है और उसके बाद फिर वो कोई सॉक्स वेयर करें या जो भी फुटवेयर है। Managing about 130 cases of the foot ulcers and the problems. Internationally, we have about 15 to 25% of the patient with the diabetes will develop कहते the हैं और फैसिलिटेट करते हैं। इसके बाद मैं असेसमेंट वालों को तहसीन पेश करना चाहूँगा जो अपनी मेहनत से मरीज़ की बुनियादी तस्वीर हर डॉक्टर के कंप्यूटर तक पहुँचा देते हैं। इन तमाम मरहलों से गुजरने के बाद जब मरीज़ डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर की जिम्मेदारियों में मर्ज़ की दुरुस्त तशख़ीस के साथ उसका बेहतरीन इलाज मुहैया करना और पेचीदगियों को फौरी तौर पर पहचान कर उसके सदेबाप के लिए इक़दाम उठाना है, जो यहाँ के डॉक्टर ऐसे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं जिसमें डायबिटीज़ की मुख्तलिफ़ अक़साम जैसे टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी और डायबिटिक न्यूरोपैथी की तशख़ीस करना और उनको प्रिवेंट करना शामिल है और साथ ही बेहतरीन दवाइयाँ और इंसुलिन तशख़ीस करना भी शामिल है। यहाँ पर मैं एक और बात बताते चलूँ कि सिर्फ दवाइयों से इलाज मुमकिन नहीं बल्कि डॉक्टर का रवैया, खुश अखलाक़ी, मोहब्बत और हमदर्दी मरीज़ के लिए आब हयात का काम करते हैं और इसी प्यार और मोहब्बत के बायस हमारे मरीज़ ना सिर्फ हमारे साथ जुड़े हुए हैं बल्कि माशरे में TDC के एम्बेसडर का काम भी करते हैं। ट्रीट की है TDC के अंदर वो है कि एक शार्कोफुट में ये होता है कि उसके पेशेंट की सारी न्यूरोपैथीज इस हद तक डेवलप हो चुकी होती है कि उसके पाँव की हड्डियाँ टूट जाती हैं और उसको उसका दर्द तक महसूस नहीं होता। तो ये शार्कोफुट आपको सारा नजर आ रहा है, इसका पूरा ट्रीटमेंट हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। इस वक्त तक जो प्रेवलेंस है हमारे पास जो इस्लामाबाद, पिंडी जैसे लोकल आसपास के जो एरिया में पेशेंट आए 3.29% प्रेवलेंस है, यानी कि 100 डायबिटिक पेशेंट के अंदर से 3.29 यानी कि 3% पेशेंट को शार्कोफुट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि हम क्रो बूट यहाँ पे इस्टेब्लिश बना के देते हैं उनको। ये जो आपको बूट नजर आ रहे हैं 3 तरह के नजर आ रहे हैं, तो क्रो बूट बोलते हैं, शार्को रिस्ट्रेट आर्थोटस वॉकर हम लोग इनको बोलते हैं। इससे क्या है कि मरीज का फंक्शनल स्टेटस इंप्रूव हो जाता है। जो कभी पहले चल नहीं पाता था इन शूज़ को पहन के वो चलने के काबिल हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इस तरह की हमने अपनी 4 रिसर्चेस को पब्लिश किए IDF में एंड थैंक यू वेरी मच। आप ठीक हो जाएंगे। इट्स अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, पूरा एक प्रोसेस है जिसमें खाली पेशेंट इन्वॉल्व नहीं है, इसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व है, इसमें एजुकेटर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें नर्सिंग स्टाफ इन्वॉल्व है, इसके अंदर डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के लोग इन्वॉल्व हैं। ये कि इससे हमें क्या क्या होता है या क्या हम इससे कर सकते हैं कि हमने बिहेवियरल चेंजेस लानी है, लाइफस्टाइल को चेंजेस लेकर आनी है ताकि मॉडिफिकेशन हो सके। अगर आप सिर्फ अवेयरनेस देते हैं और पेशेंट को अगर डायबिटीज़ हो गई है या वो प्री डायबिटीज़ स्टेज पे है तो किस तरीके से वो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, कैसे कूप कर सकता है अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, उनकी अवेयरनेस देना, उनको प्रिवेंशन का तरीका बताना और इस डायबिटीज़ को इट्स अप टू यू या इट्स अप टू योर पेशेंट कि वो अपने इस डिजीज़ को एक दोस्त बनाता है या वो अपनी इस डिजीज़ को एक दुश्मन बनाता है। अगर तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे, अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे, अपनी प्रिवेंशन करेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, डायबिटीज़ आपका दोस्त बन के रहेगा। लेकिन
अगर आप परहेज़ नहीं करते, आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव नहीं करते, तो वो चीज़ जो है वो खुदा ना खास्ता डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस की तरफ